What is it? Answer. Exactly what she said. The word of my mouth. The sky. A plate full of pearls inverted on your head. It roams here and there, but no pearl falls down. I'm not good at riddles. ये इजी था. नाउ द टफ वन. रेडी? अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ. ये चाहिए मुझे सॉल्व करना है तुम लोगों से. एक गुणी ने ये गुण कीना, एक गुणी ने ये गुण कीना, हरा लाल पिंजरे में दीना. देखो जादूगर का कमाल, डाले हरा निकाले लाल. अरे भैया, ब्रावो. एक गुणी ने ये गुण कीना, हरा लाल पिंजरे में दीना. देखो जादूगर का कमाल, डाले हरा निकाले लाल. आप सबने पान खाया? सच्ची बताओ. डोंट, आई विल नॉट जज, आई विल ट्राई नॉट टू जज. अगर आपने नहीं खाया है तो. Everybody had pan, right? At least once in their life. Just imagine this. Do you guys ever had a pan? You know what a pan is? Beetle leaf. Beetle leaf, it's called? Yes, beetle nut leaf with limestone. Limestone. Sort of. I won't call it. It's a mouth freshener. After food you have it. With the king. So आप वो imagine करो, आप लोग अपना अपना टाइम जब आपने पहली दफा पान खाया होता है. पहली दफा क्या, जब भी आप पान खाते हो तो पहले 10-15 सेकंड के लिए खो जाते हो. एटलीस्ट पहले 5-7 सेकंड तो आपको मतलब दिवाली हो रही है अंदर फ्लेवर्स की. इधर कुछ फूट रहा है, इधर कुछ फूट रहा है, बड़ा मजा आ रहा होता है. खुसरो साहब पान के ऊपर कहते हैं कि पान हाय प्लीज. ये मेरी है ना? नहीं. ओह सॉरी. हाँ, फ्लो बहुत टूटता है बीच बीच में. पान. खुसरो साहब कहते थे कि पान हिंदुस्तान का एक अजब मेवा है. देखने में घास फूस है मगर इसे खाने से खून पैदा होता है. वो तो यहां तक कह चुके थे कि जिसे पान का मजा लेना आता है. अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ समझने मुझे कई साल लगे. बहुत आसान है. आपको आ जाए तो खुश नसीबी आपके. कहे कि जिसे पान का मजा लेना आता है. इमेजिन करो. जिसे पान का मजा लेना आता है उसे जिंदगी का मजा लेना आता है. और इसीलिए फादर ऑफ कव्वाली कहे जाने वाले अमीर खुसरो को रिस्पेक्ट देने के लिए, होमाज देने के लिए ही आज भी कोई भी कव्वाल स्टेज पे जाने से पहले पान जरूर खाता है. Now the part we'll all sing together, all right? We all know this. Sindri da ये कवाली लिखने वाले नहीं पता था ना. थैंक यू बोलो. कौन यू गाइस, इतना नहीं कर सकता. खुसरो साहब, थोड़ी थोड़ी फील आ पा रही है खुसरो साहब की. कितने जरूरी है हम लोगों के लिए खुसरो साहब के बारे में जानना. साथ ही है. बहुत लोग नए नए हैं. अब कहानी में आगे बढ़े इसके पहले कोई आना चाहता है? हिंदी 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 वाले लोग. What should I do with you guys? यार, how should I translate it to you? I'll have to. No. Okay, let me do a small English poem which I love. All right. No, they're like settling down, right? The show is about to start. We haven't started yet. It's like the warm up. We were waiting for these 4 lovely people. Now they're here, then we start. Oh, she got so shy. Oh, don't talk about me. For only English speaking audience, there's a small piece which I love.
and I haven't narrated in a really, really long time. I'm sure you love it. There's this movie called Harold and Kumar. By any chance anybody watched it? Yes, yes, The second part, Guantanamo Bay. yes. Huh? So उसमें how Kumar proposed to his girlfriend with a poem, which I love thoroughly. All right. How many of you like math? Some of you at least should, right? So he says, he goes to his girlfriend and he's like, I fear that I'll always be a lonely number like root 3. I fear that I'll always be a lonely number like root 3. For 3 is all that's good and right. Why must my 3 kept out of sight underneath that vicious square root sign? I wish instead I were a 9. Because 9 could thwart this evil trick by just some quick arithmetic. I know I'll never see the sun as 1.73 to 1. Such is my reality, a sad irrationality. When hark, what is this I see? Another square root of 3 has quietly come waltzing by, and now together we multiply. To form a number we prefer, rejoicing as an integer. To break free from this mortal wands by the wave of this magic wand, our square root sign became unglued, and love for me has been renewed. Root 3. 3, 2, 1, clap. My God, you guys have your. I'll have to train. I'm very good teacher, don't worry. Back to Sufi. जो लोग बाद में भी आए हैं, हम लोग आज सूफी शाम कर रहे हैं. आज हम आप लोगों को सूफी में कवालियां क्यों, कैसी, कब बनी बताए. कवालियां जानते हैं आप लोग? एक आध कवाली का नाम बता दो. मैंने भी सुना है कि आपने सुना था कवालियों के बारे में. Definitely. And your wish is my command. How many of you who just walked in ever heard this song before? Wow. You guys have heard? Lovely. सुना है ना? अभी नहीं सुनी. आगे भी बहुत सारी कवालियां मैं आपको ऐसे सुनाने वाला हूं जिनकी जो आपने सबने सुनी है, पर कहानियां क्यों, कब, कैसे बनी याद समझ पाओगे. मेरा मानना है अगर उन गानों के पीछे की कहानी आपको पता हो तो वही गाना सुनने का पूरा नजरिया बदल जाता है, सब कुछ नया हो जाता है. Like how I started. Let me introduce to the rest of you. मेरा नाम लक्ष्य माहेश्वरी है. I'm a storyteller by profession. On Instagram, social media, YouTube, I do a thing called गानों की कहानियां, stories behind the songs I narrate. Just because by listening to them, the entire perception changes. How many of you seen this movie called Tamasha? Raise your hands. You guys like the movie? That this song which comes towards in the middle of the movie, Agar Tum Saath Ho. Do you guys, any of you know the song? Yeah. Sing it for me then. Let's see. I don't know how it starts, but I know the song. नजरों में है तेरे सपने, तेरे सपनों मुझे लगता है कि बातें दिल की होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो. सुना है सबने गाना? नाउ जस्ट सिंग इट फ्रॉम देयर ऑन. मैं आपको इसकी छोटी सी कहानी बताता हूँ. इस मूवी में रणबीर कपूर है, दीपिका पादुकोण है. रणबीर कपूर बेज कलर के कपड़े पहना हुआ है एंड दीपिका पादुकोण लाल कलर के कपड़े पहनी हुई है. What a good director does to a movie and a scene. जो वेद रणबीर कपूर जो बेज कपड़े पहना हुआ है, is representing the brain, दिमाग. And Deepika Padukone is wearing red because she is representing the heart. जब भी फीमेल वर्सेस आते हैं तो अलका याग्निक मतलब दीपिका पादुकोण मतलब दिल की आवाज है एंड ब्रेन से बातें कर रही है, और अरिजीत की आवाज ब्रेन की आवाज है जो उससे बातें कर रही है. नाउ सिंग द सॉन्ग. तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, थी जिंदगी. अब घर जाके होमवर्क नंबर 1, ऑल ऑफ यू विल गो होम एंड लिसन टू दिस सॉन्ग कॉल्ड अगर तुम साथ हो. जोर से कहो हाँ. शाबाश. लवली. बैक टू खुसरो साहब. जितने लोग लेट आए थे आप सभी ने खुसरो साहब का नाम सुना है? पता, मैंने भी सुना है कि आपने सुना है. ये क्यों कर रखा है हमने कि पीछे पीछे लोग बैठे हैं और फ्रंट रो खाली पड़ी हुई है.
जरा हमारी भी थोड़ी सी वो कीजिए, आगे आकर बैठिए जनाब। वाह वाह शुक्र ऐसी, वो 2 सीट के लिए, हाँ आ जाओ आ जाओ। That's more like it. Yeah, and bring one for me also. Just kidding. मैं आपको खुसरो साहब के जरिए एक ऐसे प्रेम की तरफ लेकर चल रहा हूं जिसका ज्यादा रेफरेंसेस हमें हिस्ट्री में मिले नहीं, एटलीस्ट आपको तो नहीं पता है। When I say the word love, इश्क, मोहब्बत, प्यार, all of us has been there, right? हम सभी ने प्यार कभी ना कभी किया है, हाँ है ना? ऐसे पूछ लो, आप में से कितने लोगों को कभी जिंदगी में किसी ना किसी से मोहब्बत हुई है? हाथ खड़े करो। ऐसे टाइम पे सजेशन है, अगर आप कपल में आए हैं तो हाथ खड़े कर लीजिए, वरना बहुत दिक्कत होती है बाद में। I remember this show I was doing somewhere in Mumbai. एक कपल था, यहाँ पर बैठा था, हस्बैंड वाइफ। वाइफ ने हाथ खड़ा किया, हस्बैंड ने नहीं किया। उड़ती हुई कोनी देखी है मैंने। Alright, so just to give a chance to you guys to redeem yourself. किस किस ने मोहब्बत की है? एक बारी हाथ खड़े करो। All of us have been there. मोहब्बत सिर्फ माशूक से होए बात जरूरी नहीं, मोहब्बत और भी तरीके की होती है। वैसी एक मोहब्बत की तरफ मैं आपको लेकर चल रहा हूँ जिसे कहा गया गुरु की तरफ की मोहब्बत। ये फ्रेज कहीं सुना है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। जिसको ये नहीं आता है बहुत जज करूंगा मैं इस वक्त। The meaning of this phrase is in Hindu mythology that if I found God and my teacher standing together, I would go and touch my teacher's feet before God, because teacher is the reason who got me to God. Teacher is that important, like bigger than the God himself. All right. सूफीज्म में कहा गया शीश कटे गर गुरु मिले। बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। शीश कटे गर गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत छोटी कीमत है चुकाने के लिए, मर जाना भी, शीश दे देना भी। और खुद खुसरो साहब कहकर गए कि लागी लागी सब कहें। लागी मतलब समझ गए कि लागी लागी सब कहें, लागी लगे ना अंग, लागी तो तब जानिए जब रहे गुरु के संग। टीचर इतना जरूरी है। तो मैं आपको कहानी वो सुनाने जा रहा हूं कि इस छोटे से बच्चे को, हमारे खुसरो को, जब वो छोटे थे उनके गुरु कैसे मिले। आप में से किसी को भी पता है उनके गुरु कौन थे? आपको भैया खुसरो साहब में एक अजीब सी बात थी कि उन्हें बचपन से ही शेरो शायरी करने का शौक था। शौक नहीं था, आदत थी। कोई सवाल भी पूछे तो जवाब शायरी में देते थे। कोई बात हुई तो उनकी माँ को डर लगता था कि इन पर किसी भूत प्रेत का साया है। तो हर कभी उनकी माँ 9 साल के छोटे से बच्चे खुसरो को हाथ पकड़ के ले जाया करती पीर और औलियाओं के यहाँ झाड़ फूक कराने कि इस पे ना माता आई हुई है। और वो 9 साल का बच्चा अपनी बातों से, अपने तर्कों से हर पीर हर औलियाओं की फजीहत कर दिया करता। 9 साल का बच्चा यार, शायरी में बातें किया करता था वो। एक बारी का वाकया कुछ हुआ, बच्चा कहीं गया, वहां पे 4 औरतें खड़ी थी। बच्चे ने कहा लाइए पानी पिला दीजिए, प्यास लगी है। चारों औरतों कहने लगी तुम तो खुसरो हो ना। हाँ, पहले कोई शेर सुना। पहली लड़की कहने लगी काम करो, कुत्ते पे कुछ सुनाओ, कुत्ते पे। दूसरी कहती नहीं खीर, तीसरी कहती चरखे पे, चौथी कहती ढोल। खुसरो कह पड़े खीर बनाई जतन से, चरखा दिया चला, कुत्ता आया खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। ला पानी पिला। तो ऐसे बच्चे को उनकी माँ ले जाया करती थी झाड़ फूक कराने। तो ऐसी माँ एक बाबा के दरबार के सामने से ले जा रही थी, और ना अब खुसरो थोड़ा बिदक गए। बच्चे नहीं इरिटेट हो जाते हैं, खिसे आ जाते हैं, तो उन्होंने हाथ ऐसे झटका, माँ क्या, जब देखो जब तुम मुझे बाबा पीर औलियाओं के पास ले जाती हो, तेरा पीर अगर इतना बड़ा है तो मुझे अंदर जाने की भी क्या जरूरत है। मैं यहीं बाहर खड़े होके मन में सवाल सोच लेता हूं, वो मुझे यही जवाब दे देगी। समझे, माँ के साथ खेल रहे थे ताकि माँ गिव अप कर दे, यू नो, दिमाग था ना आपके पास। तो उन्होंने आंख बंद की और ऐसे एक्टिंग करते हुए वहां खड़े होकर सोचा फारसी में था, मैं आपको सुना हिंदी में रहा। सोचा कि तेरे दर पर आकर कबूतर भी बन जाता बाज है पीर, क्या दी तूने मुझे आवाज है। सोचना बंद किया, आंखें खोली तो अंदर से एक शागिर्द भागता हुआ है। आकर बच्चे के पास आकर कहता है आपका नाम तुर्क है? हाँ। अंदर से बाबा ने आपके लिए संदेशा भेजा है। It's like that, वो मोमेंट, राइट? लाइक क्या हुआ ये? संदेशा क्या है? संदेशा है कि जो जानता है सच वही मेरा हमराज है, और नादा है वो जिसे इस दर से ऐतराज है। पिघल गया खुसरो।
देखो, जब भी आपके अंदर ज्ञान आता है ना, थोड़ा सा भी, ज्ञान के साथ साथ ज्ञान होने का अहंकार भी आता है। यू गेट ईगो दैट यू नो समथिंग। और जहां ज्ञान है, असल ज्ञान है, वहां ईगो की कोई जगह नहीं होती। उस समय आपका ईगो हटाने के लिए सही समय पर एक टीचर आता है, गुरु आता है, जो सही रास्ता दिखाता है, तभी तो उसे गुरु कहते हैं। भागा भागा खुसरो अंदर गया तो अंदर चट्टान के ऊपर एक बाबा बैठे थे, जिनके चेहरे पे एक ऐसा नूर था, एक ऐसा रंग था जो आज तक खुसरो ने कभी किसी के चेहरे पे देखा ही नहीं। पागल हो गया, खिंचा चला गया, मंत्रमुग्ध जिसे कहते हैं, हिप्नोटिक फीलिंग। गया और बाबा के सामने जाकर बैठ गया, घंटों बैठा रहा, एकटक उनकी आंखों में देखता रहा, घूरता रहा। फिर पलट के देखा तो दूर खड़ी उसकी माँ भी रो रही थी। तब उसने अपनी माँ को देखकर कहा, माँ आज नूर है, माँ आज रंग है। और लिखी गई दुनिया की ये पहली कव्वाली। क्या कोई गैस कर सकता है कि वो गुरु जो उस छोटे से बच्चे को मिल गए थे, उनके गुरु जो आखिर में आगे चल के उनकी सारी जिंदगी का मार्गदर्शन कर पाया? आप सबने उनका नाम सुना है, आई प्रॉमिस। एनीबॉडी वांट्स टू गेस? हाउ मेनी फ्रॉम दिल्ली? हजरत निजामुद्दीन औलिया। वो जो दिल्ली में ट्रेन जाती है, वहां रेलवे स्टेशन ही नहीं और भी कुछ है, सिर्फ हजरत निजामुद्दीन पहुंच जाते हो। वहां दरगाह है हजरत निजामुद्दीन औलिया बाबा की, जो उनके गुरु बने खुसरो साहब के। और इस पूरी कवाली में गाते हुए खुसरो, इस कवाली को नुसरत साहब से लेकर राहत साहब सबने गाया, और इस कवाली में खुसरो सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि कैसे उनके गुरु, उनके पीर उन्हें मिल गए। सुनो। थैंक यू, बट होमवर्क नंबर 2, घर जाकर ये दूसरा गाना सुनेंगे। सुनेंगे? जोर से कहो हाँ। इतनी हाँ पे तो मैं आगे कहानी भी नहीं सुनाऊंगा। हाँ, 3, 2, 1 together. 3, 2, 1. See, it has to be like that. Now it's fun. अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुना रहा हूँ जो आपको बताएंगे कि इन दोनों में असल में मोहब्बत थी कितनी। हम लोगों के लिए इमेजिन करना मुश्किल है कि गुरु और शिष्य में कितना प्रेम हो सकता है, क्योंकि हमने कभी देखा नहीं है ना। सुना है आपने आपके आसपास कोई गुरु अपने शिष्य से इतना प्रेम करता हो? आप खुद? My grandfather. हाँ, was your teacher. My biggest guru, my biggest guide. So nice. My only one. Only guru, only guide. Everybody needs a teacher in their life. If you don't have a teacher yet, trust me, start looking. The life is incomplete without the teacher. They say when the student is ready, the teacher. So probably you guys haven't started looking yet. Like every now and then we just look upstairs and says like, universe, give me a sign. All of us done that, right? Let me just tell you guys, if you're looking for a sign, this is it. This actually happened to me. I was on a trek, I finished the trek and there was a big signboard on the top of the mountain. It says, if you're looking for a sign, this is it. So if you're actually waiting for that moment that you'll start looking for a teacher, or probably you didn't even know that you need a teacher, then please take it as a sign and start looking for it. Because वो मोहब्बत बहुत अलग है, आप और हम समझ भी नहीं सकते वो मोहब्बत क्या है। निजामुद्दीन औलिया यहाँ तक कह चुके थे कि समाज इस बात की इजाजत तो नहीं देता, पर अगर हो सके तो मुझे और मेरे खुसरो को मरने के बाद एक ही कब्र में गाड़ देना। मोहब्बत है ये। एक किस्सा सुनाता हूँ, उसे समझ में आएगा आपको इनकी मोहब्बत कितनी थी। कहानी है, सुनोगे? Yes. हाँ. Yes. तुम लोग सीबीएसई के लगते हो, पता है मुझे। आईसीएसई वाले पकड़ लेते हो अभी तो। कहानी औलिया की दरगाह की। कहा जाता है कि बाबा की दरगाह पे आप जब भी जाओ तो कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। जब भी आप जाओ तो आपकी मन का कामना पूरी हो जाया करती थी। तो ऐसे ही एक बाबा, एक बूढ़ा बाप जिसकी बेटी की शादी थी, पैसे मांगने बाबा के दरबार में पहुंचा। जाकर कहने लगा कि मेरी बिटिया की शादी है, थोड़ा पैसों से मदद कर दीजिए। बाबा कहे, मैं खुद फकीर आदमी हूं भैया। फकीर, अब तो आप लोग जानते हैं फकीर क्या होता है? I need the exact translation, please.
right? Hermit is a better word. We went with the spiritual values. man with the spiritual values. Hermit. Fakir is hermit. एक बहुत खूबसूरत सा दोहा है, कहा गया कि हद हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर। हद हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, हद अनहद दोनों टपे, वाह को नाम फकीर। कबीरा। पीरों और औलियाओं से, पंडितों से ज्यादा बड़ा दर्जा दिया गया है फकीरों को। तो बाबा फकीर थे, उन्होंने कहा मेरे पास कहां पैसे वैसे धन दौलत। Fakir is also a seeker, no? You're not found in it. No. He's a seeker who's looking, who's just continuously roaming around. Banjara, wanderlust. इस पे भी आता है। I got something very nice. बाबा कहे मैं खुद फकीर हूँ, ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा ओढ़ रखा है, पैरों में चप्पलें हैं, तो चप्पलें खोली और कहा जा ये ले जा। तो बाबा चल गए। पर आदमी सोचिए कोई बात हुई, पैसे मांगने आया था, बेटी की शादी है, चप्पलें पकड़ा दी तुमने, चलो आशीर्वाद समझ के उठाया और चल गया। रात को पेड़ के नीचे सो रहा था, लंबा था रास्ता, घर बड़ा दूर था। दूसरी तरफ से अमीर खुसरो साहब का काफिला अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से बहुत सारे इनामात, खजाने, दौलत, शोहरत लेकर लौट रहा था। अलाउद्दीन खिलजी एवरीबडी नोज, सबके सामने रणधीर सिंह आ गया, दिख गया ना, ऐसे ऐसे करता हो। पद्मावत देखिए, उसमें है खुसरो, नहीं बताऊंगा कहां, घर जाके होमवर्क नंबर 3। दूसरी तरफ से खुसरो साहब का काफिला लौट रहा था। बीच रास्ते में उन्होंने अपना काफिला रुकवा दिया और कहने लगे कि मुझे मेरे गुरु की खुशबू आती है। उन्होंने कहा नहीं खुसरो साहब, अभी दिल्ली बहुत दूर है, ये दिल्ली बहुत दूर है, ये भी यहीं से आया, अभी दिल्ली बहुत दूर है। नहीं माने, पालकी से उतरे और खुशबू की तरफ भाग पड़े। चलते चलते पहुंचे वहां पर जहां पेड़ के नीचे बाबा सो रहे थे। बाबा को उठाया, कहा तुम दिल्ली से आ रहे हो? हाँ, मेरे गुरु मेरे मुर्शिद निजामुद्दीन औलिया से मिलकर आ रहे हो। काहे का मुर्शिद? मैं तो मांगने गया था पैसे, चप्पलें पकड़ा दिए बास मारती वैसे है। खुसरो हाथ जोड़े और कहने लगे मेरे गुरु की चप्पलें मुझे दे दो। कहते नहीं, एक यही चीज तो उन्होंने मुझे दी है, तो मैं कैसे दे दूं? खुसरो कहे काम करो, ये सारे हाथी घोड़े खजाने इनामात सब तुम रख लो, बस मेरे गुरु की चप्पलें मुझे दे दो। चप्पलें ली, पगड़ी खोली, चप्पलें रखी, पगड़ी बांधी और एक छोटे से बच्चे की तरह दिल्ली की तरफ भाग गए। ये फीलिंग आप सिर्फ इमेजिन कर पाओगे, बी विथ मी हियर। आप सबने कभी ना कभी जिंदगी में किसी ना किसी को तोहफा दिया है, हम सबने गिफ्ट दिया है ना कभी ना कभी, हाँ या ना? हम सब ने कभी ना कभी किसी को तोहफा दिया है। तोहफा देने वाले को ज्यादा खुशी होती है तोहफा मिलने वाले से। सोचकर देखो, जिसको तोहफा मिल रहा है उससे ज्यादा खुशी तोहफा देने वाले को हो रही होती है। अग्रीड? Who's more happier in a gift transaction? The one who's receiving the gift, the one who's giving the gift? I'm divided. Trust me. I like taking it. देने, फैक्ट यही है असल में कि मैं बताता हूं क्यों। I'll come to the point. तोहफा देने वाले को ज्यादा खुशी होती है तोहफा मिलने से, क्योंकि उसके अंदर एक प्यार का अहंकार है कि देख मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तेरे लिए क्या लाया हूं, तू ये देखकर खुश हो जाएगा, उससे मुझे जो खुशी मिलेगी वो वाली खुशी है देने में। लेकिन असल में जहां प्रेम होता है वहां अहंकार की कोई जगह होती नहीं है। जहां प्रेम है वहां अहंकार आ ही नहीं सकता, और जहां अहंकार आ जाए वहां प्रेम की कोई जगह नहीं। फिर ये तो बाबा थे, निजामुद्दीन औलिया बाबा को कहा गया महबूबे इलाही, वो शख्स जिसे खुदा से मोहब्बत हो चुकी है। अब आपको खुदा से मोहब्बत, तो फिर कहां अहंकार में फंसने वाले हो आप? खुसरो पहुंचे और जाते ही बाबा के पैरों में उनकी चप्पलें रख दी, कहा देखिए मैं लाया। बाबा भाप गए। बाबा ने पूछा भाई क्या हो गया, कैसे मिल गई तुम? खुसरो ने पूरा वाक्य बताया और बड़े बड़े गुरूर के साथ कहा कि अपनी सारी जायदाद दौलत दे आया लेकिन आपकी चप्पलें ले आया। बाबा एक टक खुसरो की आंखों में देखते रहे और फिर कहा अच्छा, फिर तो बड़ी सस्ती मिल गई। सारा गुरूर फिर से चकनाचूर। खुसरो एक टक बैठा रहा, अपनी आंखों में आंसू लिए बाबा को देखता रहा। मैं तो वहां नहीं था, पर शायद तभी खुसरो के मन में फूटी थी ये कव्वाली। सबने सुनी है?
3, 2, 1. मुझसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब अब वैसे तो ये शो 1.5 घंटे का है, पर हम इतना नहीं चाटेंगे आपको। 5 मिनट की एक आखिरी कहानी और फिर आज समाप्ति। हाँ, आखिरी कहानी है, सुनना चाहते हो तो फुल एक्साइटमेंट दिखा दो, वरना मैं भी चला जाऊंगा। Lovely. ये मतलब वैसे खुसरो साहब पे मैं पूरा सेट करीब 2 घंटे का करता हूँ, पर आज नहीं, आज हम इस छोटी सी कहानी से खत्म करते हैं। अच्छी चीजों की खूबसूरती ये भी है कि उसे कम सुनना चाहिए। सवील की आपके आपके नोमैड, खाना बदोश, वांडरलस्ट, बंजारे पे एक बड़ी प्यारी चीज जरूर बताता हूँ मैं। मीनवेल खुसरो की आखिरी कहानी से पहले आप सबने शब्द सुना है ना, बंजारा, नोमैड, वांडरलस्ट, हु कीप्स ऑन रोमिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, राइट? उर्दू में से कहा जाता है खाना बदोश। बोल के देखो, खाना बदोश 2 शब्दों से मिलकर बना है, खाना और दोष। खाना मतलब घर और दोष मतलब कांधा। खाना बदोश मतलब जो अपना घर अपने कांधे पर लेकर चलता है, वो खाना बदोश। जहां पहुंचा वहां घर निकाला, लगाया, रहा और फिर आगे बढ़ गया। समझ गए? अब बात का जवाब दो, दुनिया का पहला खाना बदोश कौन था? Who was the first wanderlust nomad of the planet? सागर भैया। शिवा। घर जाके ढूंढ लेना। थैंक यू। Jesus Christ came to Kashmir. द फर्स्ट wanderlust, दुनिया का पहला खाना बदोश कछुआ था, जो अपना घर अपने कांधे पर लेकर चलता है, जब मन किया घर के अंदर और फिर निकला और बाहर। टॉर्टिस, टर्टल, his house is on his neck only. He can go home whenever he wants, and then he keeps on walking. Right? Last कहानी, ready? Yeah. हाँ, ये कहानी बहुत जरूरी है आप सबको समझना। देखो, एक तो यार एक गुरु वाला प्रेम ना हम सबके बस की तो बाहर है। कुछ दिनों पहले बाबा बुल्ले शाह और उनके गुरु के मोहब्बत के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मैंने डाला, मेरा दिल टूट गया यार इंटरनेट से। हर तीसरा चौथा कमेंट आता था हाउ गे। अगर एक गुरु और शिष्य के बीच के प्रेम में भी आप ये एंगल घुसा रहे हो तो फिर तो क्या ही आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो उस नजरिए से कभी देखने की कोशिश हम ना ही करें तो बेहतर है। आप और मैं बहुत छोटे हैं उनका प्यार को समझने के लिए। बारी का वाकया कुछ यूं है कि एक बारी निजामुद्दीन औलिया की तबीयत खराब हो गई। एक दफा निजामुद्दीन औलिया की तबीयत खराब हो गई। ये तब का समय था जब खुसरो हज पे चले गए थे। हज समझते हैं? हज समझते हैं सभी लोग? हज, उस समय हज बहुत लंबा काम माना जाता। लास्ट स्टोरी हो जाएगा। वेट आई गिव। खींचो। यार गोवा के वेदर ने मेरी तो कमिंग बैक। हज पे गए हुए थे खुसरो साहब, बहुत लंबा समय लगता था। उस बीच में निजामुद्दीन औलिया की तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हुई कि अब बचने के कोई आसार भी ना बचे। और आखिरकार निजामुद्दीन औलिया ने अपना दम तोड़ दिया। जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ा तो आप जानते हैं उनके मुंह से निकलने वाले आखिरी 3 अल्फाज थे, लफ्ज थे, शब्द थे, खुसरो खुसरो खुसरो। और वो मर गए। ये बात बहुत महीनों के बाद खुसरो तक पहुंची। हज बीच में छोड़ के खुसरो भागे भागे वापस आए। कुछ महीने बीत चुके थे, लेकिन किसी भी शागिर्द, किसी भी डिसाइपल की इतनी औकात नहीं थी कि बाबा के आखिरी दर्शन उनके खुसरो को कराए बिना उनका शरीर दफना दिया जाता। तो अभी भी वैसा का वैसा रखा हुआ था। लेकिन मरने के बाद शरीर खराब होना तो शुरू हो जाता है। तो यहाँ से मांस जा चुका था, यहाँ से खराब हो चुका था। देखने में खराब ना लगे इसलिए बाबा के बाल
बाबा के केश उनके मुंह के ऊपर ऐसे ढांक दिए थे और शरीर रखा हुआ था। कितना टाइम लगा इसको? कुछ महीने एग्जैक्टली। तो खुसरो आए ने बाबा का शरीर देखा। ये वो वाली फीलिंग है, आपने कभी फील की है नहीं, जब घुटनों में और पैरों में कोई जान ही नहीं बचती, यू just collapse. There's not even a single cent of energy left in your legs at all. You just collapsed with the shock. उनकी गोरी थी, उनकी मोहब्बत थी जो मर चुकी थी, और गिरते ही खुसरो के मुंह से दो लाइनें निकली। उन्होंने कहा, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोए सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुदेस। कि इस पूरी दुनिया की अब शाम हो गई, अब यहां रहने का कोई मतलब बचा ही नहीं, ये नहीं तो मैं जीकर क्या करूंगा। और ये कहकर कुछ समय बाद खुसरो ने भी अपना दम तोड़ दिया वही बाबा के साथ। He also died. मरने के लिए ना कोई औजार की जरूरत पड़ी, ना खुदकुशी की, अपने आप शरीर ने प्राण ही छोड़ दिए। और आखिरकार वो दोनों आज भी दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह में अगर आप जाएंगे तो बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है कि जहां बाबा की मजार है उसके ठीक बगल में खुसरो भी सो रहे हैं। पहले जाकर खुसरो पे मत्था टेकना, वरना बाबा आपकी बात नहीं सुनते, साफ साफ लिखा हुआ है। तो आइंदा आप कभी दिल्ली की तरफ रुख करें तो कृपया करके एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप जाइएगा और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जाएंगे। इस पूरे सेट के बाद मुझसे सिर्फ इतना सा वादा कर देना। ये सारी बातें क्यों सुनाई मैंने, क्यों सूफी के बारे में बताया, क्योंकि इन लोगों के बारे में आपको जानना जरूरी है ना। म्यूजिक से प्रेम था तो कितना जरूरी था सारी कहानियां जानना। तो बस इतना सा काम करना कि आज के बाद कभी गलती से कोई कवाली कानों में पड़ जाए, कोई गजल सुनने का मन हो जाए, नहीं सितार की आवाज सुन लो, तबले की आवाज सुन लो, ढोलक की आवाज सुन लो, या और कुछ नहीं तो साला मुंह में एक पान आ जाए। तो खुसरो साहब के गुरु और खुसरो साहब दोनों को याद जरूर करना एक बार। थैंक यू वेरी मच। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। मतलब समझना, मतलब मैं आपको ऐसे समझाता हूं, आप सबको प्यास लगी है कभी ना कभी? नो नेवर। कभी ना कभी प्यास आप सबको लगी। आप इमेजिन करो वो सिचुएशन जब पूरा गला सूख रहा, खराश हो अंदर तक, पानी की बूंद तक नहीं अंदर गई है, पूरे होठ भी सूख चुके हैं, और तब मैं आपके पास आऊं और आपसे कहूं, सुनिए, पानी गीला होता है, पानी पीने से तरावट आ जाती है, पानी पी लो तो पेट भी भर जाता है, बड़ा शीतल शीतल लगता है। आपको कोई फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा? और बेचैन हो जाएंगे। कैसे फर्क पड़ेगा? मतलब फर्क पड़ने से मेरा मतलब है क्या प्यास बुझेगी? कुछ भी कर लो उतना सुन के, मेरी बकबक, मैं पानी के गाते में पेंटिंग्स बना दूं पानी की, तुम्हारी प्यास बुझेगी? वो जब तक पानी पियोगे नहीं तब तक नहीं बुझेगी। प्रेम बिल्कुल वैसा ही है। प्रेम के बारे में सुनना, पढ़ना, समझना कुछ नहीं होता। प्रेम खुद करना पड़ता है, प्रेम में खुद डूबना पड़ता है, तब जाकर थोड़ा बहुत प्रेम समझ में आता है कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, सो पार। This you guys should know, but I don't know who will translate it for you guys. You can do it. I'll try. So there's this old saying which Khusro did, तो आपने सुनी ली, that meant प्यार का दरिया है, डूब के ही जाना है, ये भी लिखा है क्या? नहीं, ये पर इन्हें उसे लिया दिख रहा है ना कि यहीं से आया होगा कहीं ना कहीं। मीर का है, तक मीर का। प्लीज कोई कर दो यार, I can't find the words. So have you ever felt the thirst, that you're very thirsty and you want water but there's no water around, right? You just desperately need a gulp of water, otherwise you'll as close that you're about to die. Just imagine with me for a second. At that point, if I come and tell you that water, the property of water is very wet. Water has hydrogen and oxygen in it, and when you drink it, it feels like this. Would it matter? Like, would your thirst be satisfied?
by just listening about water. Are you getting what I'm saying? Am I there? So for example, if you're that thirsty, even if I try to tell you what water is and what water does, your thirst won't be satisfied till the time you actually drink water. Am I right? Correct? With me? Say yes. Love is exactly like that. No matter how much you read about it, no matter how much you hear about it, no matter you see so many paintings about love, till the time you do it yourself, you will not understand what real love is. एक्सपीरियंस है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो। अब शो खत्म। मतलब सेट तो बहुत लंबा है, पर मुझे लग रहा था कि खत्म कर देते हैं, थोड़ा फील सी। ब्रेक की तो जरूरत है, ब्रेक ले लेते मैं खुद ही नहीं आ पाऊंगा। हॉट थॉट है। चलिए अब फिर ना सूफी छोड़ते हैं। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं सूफी सेट करता क्यों। ये शो अपने आप बना है, अपने आप निकल के आया है, और ये शो क्यों जरूरी है। हम इसमें बाबा बुल्ले शाह की कहानियों की बात करते हैं, हम इसमें कबीर की कहानियों की बात करते हैं, गालिब से लेकर मीरा की कहानियों की बात करते हैं। इन सारी कहानियों में आपको एक चीज देखने को मिलती है कि इन सभी की कहानियों में बातें सबने एक जैसी की। सब पेथी पोथी पढ़ जग भया, पंडित भयो न कोय, ढाई आखर प्रेम का। बिना पढ़े नहीं हो सकता ना प्रेम, मतलब आपको प्रेम समझना पड़ेगा, पढ़ने से नहीं होता। ढाई अक्षर प्रेम के सच में पढ़ो, ये वही बात नहीं है खुसरो दरिया प्रेम का वाले। सबकी बातें एक जैसी ही हैं। वहां गुरु की बात है, इन दोनों की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट गुरु थे। बुल्ले शाह के गुरु थे शाह इनायत कादरी, और कबीर के गुरु थे रामदास। दोनों नहीं पता था ना तुम्हें? थैंक यू बोल। मैं आपको एक क्विकली गानों की भी कहानी है इसमें, तो आपको और मजा आ पाएगा। मैं आपको लेकर चलता हूँ बाबा बुल्ले शाह के पास। बाबा बुल्ले शाह का नाम सुना है? गानों में सुना है। एक बार सब चलो कबीर से आता हूं मैं, पर अपन बीच का स्किप करेंगे। दिस दिस प्रोसेस कॉल्ड नेति नेति। एक तो बोल कर देखो, नेति नेति। नेति नेति वो प्रोसेस है जिसमें अगर आप किसी भी चीज को ढूंढना चाहते हो या खुद को पाना चाहते हो, तो पहले वो चीजें हटा दो जो आप नहीं हो। वो सारी चीजें हटा दो जो आप, जो बचेगा वो आप हो। मतलब सबको नेगेट कर। इट्स कॉल्ड नेति नेति। कबीर ने भी इस पर भजन लिखे। क्या कौन सा वाला? ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं इसमें, मुंह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास है। सुना है? बुल्ले शाह ने लिखा क्या? सुना है सबने? वो भी यही कर रहा है, नाम है ये, नाम है वो, नाम है ये, नाम है वो, बुल्ला की जाना मैं कौन। है ना? अब या तो उस समय की इंटरनेट स्पीड बहुत फास्ट थी कि इन सब ने अपने अपने नोट्स चेक कर लिए कि भाई ऑल ऑफ अस आर गोना टॉक अबाउट द सेम थिंग, और they all reached that one particular place which was actually one singularity, it whatever you want to call it. बस सबने रास्ते अलग अलग लिए थे, इसीलिए सबकी बातें हैं पूरी की पूरी एक जैसी। and that's what we do with सूफी वाला शो। आपको ये समझाना कि असल में प्यार, असल में जिसको ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही तो है, और कहीं है ही नहीं ना। ये जो गाना है बुल्ला की जाना मैं कौन, अब बताओ ये बुल्ले शाह ने लिखा है, why is he writing बुल्ला की जाना मैं कौन? खुद को वो थर्ड पर्सन में क्यों लिखेगा? वो सारे शायर बस सूफी नहीं, इस वाले पर्टिकुलरली का मैं आपको बताता हूँ मैम, यू लव दिस। शायर करते हैं पर उसे आखिरी शेर में करते हैं कि गालिब एक लाइन के लिए। because he is not identifying with Bulla. वेरी ट्रू। व्हाट ही इज ट्राइंग टू से इज, आप सबने कोई ख्याल, कोई दिमाग में थॉट चलता है, व्हेनेवर यू थिंकिंग समथिंग देयर आर टू वॉइसेस इन योर हेड, करेक्ट? देयर आर टू वॉइसेस व्हिच इज टॉकिंग टू ईच अदर, you just one, right? How come there are two voices in your head? And if I'll come to that, and if there are two voices in your head and you just noticed it, observed it, who is that third person who's observing? That's you. That is the person who's writing this song, कि बुल्ला भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। वो जो है, जो आपके अंदर है,
आपको बस अंदर आना है उसको पाने के लिए। कबीर की मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो साफ साफ ये कह रहा है कि खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं। तुरंत शब्द समझते हैं? तुरंत से भी कम, पलक झपकने से भी कम समय कहा गया तुरंत को, कि खोजी हुए तो तुरंत मिलूं मैं, एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। 1 सेकंड की बात है अंदर जाने में बस, और कुछ भी नहीं। कबीर का एक बात सुनिए, मुझे बड़ी पसंद है। कबीर पेशे से जुलाहे थे। जुलाहे शब्द समझते हैं? जो कपड़े सीकर अपना गुजारा करते हैं, वही कपड़े बाजार में बेच देते हैं और काम चलाते हैं। उनकी माँ बड़ी समस्या में रहती थी, उन्हें लगता था क्या कर रहे हैं, राम राम करता रहता है भजन में, ना कोई पैसे कमाता है ना कुछ। तो माँ हमेशा, यू नो हाउ मॉम्स आर राइट, जा कमा के ला। तो अपनी माँ को एक लाइन कहते थे, दिस चेंज माई लाइफ, आई थिंक इट विल हेल्प यू गाइस अ लॉट। कबीर कहते थे कि माँ चाह गई चिंता मिटी मन व बेपरवाह, चाह गई चिंता मिटी मन व बेपरवाह, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए वो शाहों के शाह। सिर्फ समझना मेरे साथ 1 सेकंड के लिए, अमीर आदमी वो नहीं है जिसके पास सब कुछ है। अमीर आदमी असल में वो है जिसे अब कुछ नहीं चाहिए। आप में और दुनिया के सबसे अमीर आदमी में अभी एक पल भर का फर्क है, बस यहीं बैठे बैठे, इसी क्षण, इसी समय, इसी पल आप पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन सकते हैं, यही कहीं। यस और नो? अगर आपको कुछ चाहिए ही नहीं तो फिर कोई आपको क्या ही लालच दे देगा? है ना सब आपके पास। इसीलिए सारे जवाब सिर्फ अंदर हैं और कहीं भी नहीं। यहां कभी बुल्ले शाह पे ढूंढो तो वो भी यही बातें कहते हैं। गुरु की अब एक कहानी आपने इतनी सुनी ली है तो बुल्ले शाह की फटाफट एक कहानी सुन लो और फिर हम पक्का। बुल्ले शाह के गुरु थे शाह इनायत कादरी। नाम लेकर देखो, शाह इनायत कादरी। 3, 2, 1। शाह इनायत कादरी बुल्ले शाह से बेपनाह मोहब्बत करते थे, दोनों एक दूसरे से बड़ा इश्क करते थे। एक दफा हुआ यूं कि बुल्ले शाह की किसी बात पर शाह इनायत को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने बुल्ले से कह दिया कि यहां से निकल जा और आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखा। बाबा का आदेश टाल तो सकते नहीं थे, झोला उठाया और चल दिए। उनके बाबा को मौसीकी का बड़ा शौक था। मौसीकी समझते हैं कोई? म्यूजिक, डांस, द एंटायर आर्ट फॉर्म इज कॉल्ड मौसीकी इन इस्लाम। उनके गुरु को मौसीकी का बड़ा शौक था और बुल्ले शाह को ना नाचना आता ना गाना। उस समय नाचना गाना सिर्फ एक ही जगह किया जाता था, बताओ कहाँ? कोठे पर। अब एक फकीर कोठे पे जाए तो कितना गंदा लगेगा सोचो। पर गुरु के बिना तो कोई पॉइंट है ही नहीं ना जीवन का। इमेज के बारे में लोग क्या बात करेंगे जब गुरु नहीं होगा मेरे पास। वो पहुंच गए, कोठे पे गए, हाथ जोड़े, बोले मुझे नाचना गाना सिखा दो, मुझे मेरे रूठे गुरु को मनाना है। 5, 6, 7, 8 साल तक वहां रहे। For 8 years he stayed there, इस उम्मीद में कि शायद नाचना गाना सीखने के बाद मेरे गुरु शायद मुझसे मान जाएं। और आखिरकार जब उन्हें लगा कि वो तैयार हो गए हैं तो शाह इनायत के घर से थोड़ा सा दूर जाके रुक गए। गुरु ने कहा था अपनी शक्ल कभी मत दिखाना, तो सर पर एक चुनर ओढ़ ली और चिल्ला चिल्ला कर एक एक कलाम गाया अपने गुरु को बुलाने के लिए, जो आप सबने सुना है, बस आपको पता नहीं है कि बुल्ले शाह का। पर के प्रेम प्याला पीता, आजा सजना आजा सजना, नहीं तो मैं मर गई। और इसी कलाम को लेकर संपूर्ण सिंह कालरा जी, आप में से कितने लोगों ने संपूर्ण सिंह कालरा का नाम सुना है? थैंक यू वेरी मच, आई लव यू। गुलजार का नाम सबने सुना है? उनका ओरिजिनल नाम है संपूर्ण सिंह कालरा। वो जिस नाम से लिखते हैं वो नाम है गुलजार। नहीं पता था ना? थैंक यू। गुलजार साहब ने इसी कलाम को उठाकर एक गाना लिखा जो आप सबने सुना है। इस गाने में एक माशूक अपनी माशूका के लिए नहीं गा रहा है, असल में जैसे लिखा गया है एक शख्स अपने गुरु को ढूंढता हुआ उसके प्यार में गा रहा है कि तावीज बना के पहनूं से आयत की तरह मिल जाए वही। यार निजाले ओस चले पाँव के चले फिर दोस्त चले, मेरी शाम रात मेरी कायनात मैं हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क के।
For you guys, right there. इतना टाइम नहीं है, फटाफट पॉइंट समझे ना आप इस शो का। अगर ये प्रेम समझ में आएगा तो आपको रियलाइज होगा कि आपको प्रेम प्यार सिर्फ उससे भी नहीं करना। मीराबाई के बारे में सुनना है, नाम सुना है? मीराबाई एक बारी सब छोड़ने के बाद जब वृंदावन पहुंची तो एक मंदिर में कृष्ण के दर्शन करने गई। बाहर पंडित जी ने रोक दिया, कहते हैं तू नहीं जानती इस मंदिर में सिर्फ पुरुष प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ कोई महिलाएं नहीं आ सकती, और मीरा को लौटा दिया। सोच कर देखो, कृष्ण के मंदिर से मीरा को लौटा रहे हो। जब मीरा वापस आई और आते आते अंदर भी घुस गई, पंडित फिर गुस्से में आया, तुझसे कहा ना यहाँ सिर्फ पुरुष प्रवेश कर सकते हैं, महिलाएं नहीं आ सकती। मीरा कहने लगी हंसते हुए, जहां तक मुझे पता था इस पूरी दुनिया में एक ही पुरुष हैं, श्री कृष्ण, बाकी हम सब तो उनकी गोपियां ही हैं। एक प्यार करने वाला, प्यार करने लायक तो वही है ना। आप किसी भी चीज या किसी भी इंसान से मोहब्बत करें, मोहब्बत कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इंसान या वो चीज दोनों खत्म हो जाएंगे। एक वही है जिससे किया प्यार हमेशा था, हमेशा है, हमेशा रहेगा। प्यार करने लायक ही एक ही शख्स है वही, और कोई भी नहीं। एक छोटी सी कविता याद आ गई, सुनोगे? फरमाइए जनाब। मीरा कहती थी कि पिछले जन्म में वो कृष्ण की एक गोपी थी जिसका नाम था ललिता। गोपी समझते हैं? जिनका नाम था ललिता। इस बात पर माया गोविंद जी ने कितनी खूबसूरत कविता लिखी है, आय हाय हाय, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को यार। रेडी? कहे कि मुंदरी उलझ गई राधिका के लट बिच। ये इनको भी समझ नहीं आया, आई मीन वो भी मैंने हिंदी में बोला यार, but I'm narrating now, even these guys won't get it. So मुंदरी मतलब अंगूठी, ठीक है? मुंदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, ढूंढत फिरत शाम अपनी मुंदरिया। कि राधिका के बालों में खेलते हुए उनकी अंगूठी कहीं खो गई, ठीक है? सो मुंदरी उलझ गई राधिका के लट बिच, ढूंढत फिरत शाम अपनी मुंदरिया, ललिता ने पाई ले। ललिता ने पाई लई मुंदरी सहेज लई, शाम जुको जायो दे हीरे की मुंदरिया। उसको मिल गई और उसने जाकर कृष्ण को दी। इठलाती बोली कछु भेंट तो निकालो शाम, इठलाती बोली कछु भेंट तो निकालो शाम, शाम बोले चूम ले वही रे अंगुरिया। जिस उंगली की तू अंगूठी लाई है ना, जा वो चूम ले। स्वैग। No, you see, stay entangled. Yeah, just that finger is yours. Go kiss it. All right. So इठलाती बोली कछु भेंट तो निकालो शाम, शाम बोले चूम ले वही रे अंगुरिया। चुमत हसत जात ललिता कहत जात, चुमत हसत जात ललिता कहत जात, राम करे खोई जाए तोहरी है बसुरिया। समझे? जो जिन लोगों को पहुंच पाई है, कम ऑन, सीरियसली। तो अंगूठी खोई थी, तो कृष्ण ने कहा कि जा तू वो उंगली चूम ले। अब वो चूमते हुए कह रही है, भगवान करे तुम्हारी बांसुरी कहीं खो जाए, ताकि जब मैं बांसुरी लेकर आऊं। सो ये वाली मोहब्बत, माशूका से करने वाली मोहब्बत, आपको लोग इकलौती पति, ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चों और माँ बाप से प्रेम कर सकते हैं। उसके अलावा खुदा और गुरु से भी प्रेम किया जा सकता है, जिस तरफ बहुत कम लोग जा पाए। और जब आपको ये समझ में इन सारी कहानियों से आ जाता है, फिर मैं गालिब टच करते हुए आपको लेकर चलता हूँ। गालिब का नाम सुना है? उर्दू में चलोगे थोड़ा सा? हाँ जी हाँ। मुश्किल हो जाएगा मेरे को लग रहा है, ऑलरेडी अभी सर के ऊपर से जा रही है। जी बिल्कुल सुनाइए। समझाने के लिए बोल रहा हूं। Thoughts फरमाइए। गालिब साहब एक तो बहुत बड़े राइटर थे, ठीक है? वो जो थॉट मैं गालिब का आपको देने जा रहा हूँ इन सबसे कनेक्ट होता है। वो कह रहा है कि आपको अगर प्रेम करने लायक सिर्फ एक ही शख्स है पूरी दुनिया में, खुदा। If there's only one person worthy enough to even love, to be loved, it's God himself, nobody else. No, sorry, but nobody. There's only one worthy guy, worthy person out there whom you can really, really love. That's it. And if he's saying, and Galib is saying, कि if God is everywhere, which we've all heard, right? God is everywhere. If God is everywhere, then that it means God is inside me also, right? And if God is inside me,
then I am God. और अगर मैं खुदा हूं तो फिर तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैं खुदा हूं। If I am God, then I am God, right? इस पर उन्होंने बहुत खूबसूरत एक कलाम लिखा। पीछे वाले लोग हाय, रमन ठाकुर का भी ये डायलॉग था ना, अपनी चीज खुदा है। वो सेक्रेट गेम्स था। आपसे त्रुटि हो रही है। I am Brahmasmi. अब ये वाला जो ये बहुत शुद्ध उर्दू है, मैं समझाते चलूंगा, पर आपको इसके लिए गालिब की फील लेना पड़ेगी। यू हैव टू बिलीव दैट यू आर गॉड राइट नाउ। Okay. इमेजिन दैट यू आर इट। कहे कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। बाजीचा अतफाल मतलब बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड। यू गॉड रिमेंबर, बाजीचा अतफाल बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड है ये दुनिया मेरे आगे। बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। और एक खेल है औरंगे सुलेमा मेरे नजदीक, और एक बात है एजाजे मसीहा मेरे आगे। ये जो तख्तो ताज का तुम खेल खेलते रहते हो ना, ये जीता, इसकी गवर्नमेंट बन गई, वो जीता, ये सरकार में आ गया, इट्स जस्ट चाइल्ड्स प्ले फॉर मी, बिकॉज आई एम God. और ये जो एजाजे मसीहा मतलब जो खुदा की इबादत करते हुए आप भजन गा रहे हो, कवालियां गा रहे हो, ये कोई प्रेयर नहीं है। इट्स जस्ट अ बात फॉर मी, इट्स जस्ट समथिंग आई जस्ट से बिकॉज आई एम गॉड, राइट? नाउ इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। नाउ गॉड, यू गॉड, ऑलराइट? यू गॉड, ऑल बोथ ऑफ यू। ही सेज, होता है निदा गर्द में सहरा मेरे होते, और घिसता है जबी खाक पे दरिया मेरे आगे। जब मैं रेगिस्तान से, परसेप्शन है यहाँ, ध्यान से सुनना, जब मैं रेगिस्तान में खड़ा रहता हूं तो पूरा का पूरा रेगिस्तान मेरे पैरों की धूल बन के नीचे पड़ा रहता है। जस्ट द परसेप्शन, नथिंग एल्स। और कभी समंदर के पास चला जाओ ना, और कभी समंदर के पास चला जाऊं तो आ कर मेरे पैर चूम चूम के जाता है। और मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ये देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। ये गालिब है। अब अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो कि आपके अंदर भगवान है और आप ही भगवान हो, और ये भी समझ चुके हो कि प्यार करने लायक सिर्फ एक ही चीज है, एक ही शख्स है, वो है भगवान जो आपके अंदर है, तो एक बात बताओ, खुद से प्यार करने के अलावा और कोई भी ऑप्शन बचा है आपके पास? The only person that needs to be loved right now is just yourself. Start just loving yourself. Be fucking full narcissist out here, dude. Don't worry, be narcissist. The only problem with narcissism is when it clashes with ego or combines with ego at the same time. Despite ego, if it's with love, that's the best form of love there is. Love yourself thoroughly. Fight with yourself. खुद से गुस्सा है, खुद का हाथ काट के बैठ जाओ तुम। But you get the point, right? The only person worthy loving is just yourself. Because आप जब खुद से प्यार करने लगते हो तो सब कुछ बहुत आसानी से बहरा होता है। वो we've heard that ना, go with the flow. सबने सुना है? तो एक प्यारी सी कहानी रख लो और फिर ये शो पक्का खत्म। लास्ट कहानी, आखिरी वाली सुनोगे? जरूर। Yes. Last story of the evening, ladies and gentlemen. So scream like you have never screamed before. That's गंगा कौन कौन गए हैं? गंगा नदी के पास। नाइस, ध्यान से सुनना है कहानी, सबके लिए बहुत मजा आएगा। एक गंगा नदी के ऊपर पीपल का एक पेड़ था, ठीक है? उस पेड़ से 2 पीपल के पत्ते एक ही समय पर गंगा नदी के पानी पे टकराए, गिरे। अब जब पत्ते गंगा में गिरेंगे तो क्या होगा? बहने लगेंगे, विद द फ्लो बहने लगे। पहला पत्ता कहने लगा, आज गंगा की खैर नहीं, आज या तो मैं रहूंगा या गंगा, आज गंगा का पूरा बहाव रोक कर रहूंगा मैं, देख लेना भाई। मजे की बात यह है कि गंगा जानती भी नहीं कि ऐसा कोई पत्ता एग्जिस्ट भी करता है, करेक्ट? दूसरा पत्ता कहने लगा, चल गंगा, चल मैं तुझे तेरे गंतव्य, तेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा कर आऊं। देखो रास्ते में कौन आता है, उसकी ऐसी की तैसी, जो आएगा सबको मैं देख लूंगा, चल। और वो मस्ती करता हुआ गंगा को ले जा रहा है। पहला पत्ता लगा हुआ है पसीना बहाते हुए गंगा का बहाव रोकने पे।
पर, पूरी मेहनत कर रहा है। दूसरा बड़े स्टाइल से जैसे घोड़े की तरह राइड करते हुए लहरों को चल रहा है। किनारा आता है और किनारे पर दोनों पत्ते फिर एक ही साथ जाकर किनारे पर टिक जाते हैं। बस कहानी खत्म। ना पेड़ से गिरना आपके हाथ में है, ना किनारे पे टिकना आपके हाथ में। आपके हाथ में है सिर्फ वो बहना। अब आप कौन से पत्ते बनना चाहते हो ये आपके ऊपर। बाहर उसे कहीं ढूंढने ना जाना, सिर्फ आधा इंच अंदर आना, इसी को कहते हैं इश्क सूफियाना। प्लीज। बाय। एक और उस्ताद, But too good, Lakshya. दुआ है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब चीजें मैंने समझ ली एंड आई हैव बिकम लाइक अ सूफी एंड आई एम टेलिंग ऑल ऑफ यू। ये सारा ज्ञान उधार का है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट। सिर्फ पढ़कर लिखकर एक खुदा ने थोड़ी सी बख्शी है कि अपनी बातों को अच्छे शब्दों में कहना आता है, बस। तो इसी उम्मीद में ये सब आपको सुनाता रहता हूँ कि शायद सुनाते सुनाते मैं कुछ और सीख पाऊँ। तो प्लीज ऐसा मत सोचना कि आई नो इट ऑल। हम सबको बहना ही है ना। हाँ, क्या सुनेंगे अब और? चलिए फिर एक ये रख लीजिए, बुल्ले शाह की बात थी, इसके बाद पक्का खत्म करेंगे ना। देखो, अच्छी चीजें कम सुनना चाहिए। 4 घंटे सुता रहूंगा, मजा नहीं आएगा मेरे को। वन फाइनल काव्य है ना। हाँ, गाना तो क्या सुनाएंगे फिर? कौन पाया कि नहीं? मैं ये सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा। बुल्ले शाह सबको पता है, कहो हाँ। Yes. हिंदी। बुल्ले शाह पेशे से, पेशा तो क्या कहूँ, फकीर थे, है ना। अपने शागिर्दों के साथ, डिसाइपल्स के साथ घूमते रहते थे हर जगह। कई कई दिन हो जाते थे, ना पैसा मिलता था ना खाना। हो जाता है भाई। फिर भी हर दिन 5 वक्त की नमाज और खुदा का शुक्रिया ऐसे करते थे जैसे खुदा ने उन्हें जैसे राजा वाजा बना दिया हो भैया। मतलब इतना खुशी से कह रहे हैं कि वाह। तो ये शागिर्द एक बारी देख के बिदक गया। उसने कहा, मतलब बाबा, 4 दिन से ना खाना मिला है ना पानी, हम चले जा रहे हैं और आप खुदा का शुक्रिया तो ऐसे कर रहे हो जैसे आपको राजा वाजा बना दिया। तो बुल्ले शाह ने अपने उस शागिर्द से ये 4-6 लाइनें कही थी, जो मैं लाइनें आपको सुना रहा हूँ। ये लाइनें सिर्फ इस बारे में है कि असल में देखो दोस्त, ऐसे फैक्ट वाइज चल लो। एवरेजली हर दिन, एवरी डे, more than 1 million people are not gonna get up tomorrow morning. Every day, हर दिन 10 लाख से ज्यादा लोग कल की सुबह नहीं देखने वाले। हम हर दिन देख रहे हैं ना। ये अपने आप में एक जादू नहीं है? तो क्या हर दिन सुबह उठकर खड़े होकर can't you just say thanks to him that at least he's given you another day, which is more than enough at this point of time, one day at a time, right? इस पर बुल्ले शाह ने 4-6 लाइनें कही थी, थोड़ी सी पंजाबी में है, समझाने की कोशिश करूंगा। पंजाबी आती है किसी को अच्छे से? समझ में आती है? हाँ, वो हाँ बोल रहा है। बुल्ले शाह कहे कि चढ़दे सूरज डलदे वेखे, चढ़दे सूरज, विथ मी, चढ़दे सूरज डलदे वेखे, बुझते दीदे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोल ना जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे। थैंक यू। खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिना दाना जगत ते कोई, जिसका दुनिया में जिना दाना जगत ते कोई, वो भी पुत्र पल दे वेखे। ये इल्यूजन ऑफ कंट्रोल तोड़ता है आपका। आपको लगता है आपके बिना कुछ नहीं होगा। हेलो, सब आराम से हो जाएगा। जिना दाना जगत ते कोई, वो भी पुत्र पल दे वेखे, और उस दी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चल दे वेखे। लोग की कहंदे दाल नहीं गलदी। हम कह देते ना हमारा काम नहीं हो रहा यार, दाल नहीं गल रही है। लोग की कहंदे दाल नहीं गलदी, और मैं ता पत्थर गल दे वेखे। और जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, हथ खाली ओ मल दे वेखे।
कई पैरा तो नंगे फिर दे ना सिर दे लब्बद छावा। कई पैरों में चप्पलें नहीं है, सर पे छत नहीं है। कई पैरा तो नंगे फिर दे ना सिर दे लब्बद छावा। और मैनू दाता सब कुछ दिता, क्यों ना शुक्र मनावा, क्यों ना शुक्र मनावा। बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल। गॉड ब्लेस यू गाइस। हाँ तोची रायणा वाला ना, चलो फिर इससे एंड करते हैं आपके लिए। लीजिए जी। Thank you. Bye bye. Have a good day. चलो किसी ने कहा हमेशा ये आ गया। बाबा जी तुसी इतनी गरीबी च भी रहे रब दा शुक्रिया कितना